آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ کے ذریعے آپ کی وساطت سے ان ناانصافیوں کو منظر عام پر لانے کا موقع ملتا ہے جو اس انتخاب میں جس کو پہلے پیسوں کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی جاتی تھی، لوگوں کو دباؤ اور بلیک میلنگ کے ذریعے اپنی مرضی سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اس میں فریق بنا لیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے میرے جیسے امیدواروں کو جو کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں، جن کی فلور آف دی ہاؤس پہ کی گئی تنقید عمران خان سے برداشت نہیں ہوتی اور جن آوازوں کو وہ خاموش کرنا چاہتے ہیں، بس ٹھیک، ان کو اب انجینئرڈ ڈیفالٹ کے ذریعے انتخاب سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میرے پہ ایک نام نہاد ڈیمانڈ کریٹ کی گئی جس کے بارے میں مجھے کبھی کسی کی طرف سے اطلاع نہیں دی گئی تھی اور جب میں اس نام نہاد ڈیمانڈ کو بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اور انتخاب میں اپنا حصہ لینے کا حق استعمال کرنے کے لیے جمع کرانے کو تیار تھا، تو حکومت کے تمام محکمے اور جس محکمے کی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کی گئی، اس نے جو ڈیمانڈ انہوں نے خود کریٹ کی ہے، جس میں وہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے کچھ رقم ادا کرنی ہے، جب میں اس رقم کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہوں، اس رقم کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، تو تمام افسران جو ہیں وہ اپنی نشستوں سے اور اپنے دفتروں سے غائب ہو جاتے ہیں، کوئی میسر نہیں ہوتا، نہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں کہ جس بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کرا دوں، نہ میں کیش لیے پھرتا ہوں کہ تم یہ کیش میرے سے وصول کر لو، نہ کوئی کیش وصول کرنے کو تیار ہے، اور ملی بھگت سے عمران خان کی حکومت جو اس طرح کے جعلی مقدمات بنا کے مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں کو زیر حراست رکھے ہوئے ہے، جن میں شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے، مریم تھیں، احسن اقبال تھے، خاقان عباسی صاحب تھے، سعد رفیق تھے، سلمان رفیق تھے اور دوسرے ہمارے درجنوں ساتھی تھے۔ اب انہوں نے اسی طرح کی ایک حرکت میرے سے کی ہے، جعلی ڈیمانڈ بنائی، میں اس جعلی ڈیمانڈ کو بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پیسے جمع کرانا چاہتا ہوں، کوئی پیسے وصول نہیں کر رہا کیونکہ انہیں عمران خان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ آپ یہ پیسے وصول نہ کریں تاکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر الیکشن کمیشن کے ذریعے مجھے انتخاب میں حصہ لینے سے روکا جا سکے۔ ٹیکنیکل نہیں ہے، اب قانون امینڈ ہو گیا ہے سر 2017 سے۔ پرویز رشید صاحب، آپ کے پاس ابھی ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں کاغذات مسترد ہونے کو چیلنج کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا یہ حق استعمال کریں گے؟ ایڈ کر لیجیے، کیا ابھی تک کاغذات جمع کروانے سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ذمے اتنے پیسے ہیں؟ جی، میرے پاس کوئی اس قسم کی اطلاع مجھے ان کی طرف سے نہیں دی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا قانونی حق ہے کہ میں اس کے خلاف اپیل میں جاؤں گا، اور اپیل میں بھی جا کے
अपनी सारी गुजारिशात जो हैं वो पेश करूंगा। लेकिन एक बात मैं वादा करना चाहता हूं सर कि मेरी आवाज सिर्फ सेनेट के फ्लोर पे नहीं उठती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर भी हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मैं सेनेट का मेंबर हूं या सेनेट का मेंबर ना हूं, आप मुझे ईवान के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दें और ईवान के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दें जो पिछले 3-3 साल 4-4 साल से अदालतों के हुक्म के बावजूद, जाली एफिडेविट देने के बावजूद अब आपका टिकट लेंगे और सेनेट के ईवान में दाखिल हो जाएंगे। उनके लिए आपने दरवाजे खोल दिए, मेरे लिए आप दरवाजा बंद कर रहे हैं। आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। और ये सवाल मैं आपसे पूछता रहूंगा, जो इस मुल्क में तर्ज हुकूमत आप लेकर आए हैं और जिस तरह आप हुकूमत के अदारों को और सरकारी महकमों को इंजीनियर डिफॉल्ट के जरिए अपने सियासी हरीफों को मैदान से हटाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ मेरी आवाज पहले भी बुलंद होती रही है और आइंदा भी बुलंद होती रहेगी। आपसे मुराद आपकी इमरान खान है या वो लोग हैं जो आपके जो शोला बयानी से तांग है? थोड़ा सा ये भी बता दिए। मैं उन चेहरों की बात कर रहा हूं, वो इमरान खान के नुमाइंदे थे और इमरान खान के नुमाइंदे आपके सामने अभी गुफ्तगू करके गए हैं। और ये सारे मुकदमा जो है, जो कि एक झूठा है, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। लेकिन इस झूठे मुकदमे को भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं उसको ख़त्म करूं। जो रकम वो कहते हैं मैं उसको अदा करने को तैयार हूं। मुझे बताइए, मैं उस रकम को फुटपाथ पे रख दूं चल के? मैं उस रकम को कहां पे जमा कराऊं? इसमें किसको मेरी मदद करनी चाहिए थी? इसमें मेरी मदद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करनी है कि इलेक्शन कमीशन हुक्म देता उस अदारे को जिसने डिमांड क्रिएट की है। और कल हमने दरखास्त भी दी है इलेक्शन कमीशन को कि उस अदारे से कहिए कि हम पैसे देने को तैयार हैं, हमसे पैसे वसूल करें। लेकिन वो पैसे वसूल करने को भी तैयार नहीं, इलेक्शन कमीशन उन्हें कुछ बुलाने को और कहने को भी तैयार नहीं। जिसका काम है इलेक्शन कमीशन का कि वो मेरा ये हक मुझे दे कि मैं इंतखाब में हिस्सा ले सकूं, और इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए जो शराइत हैं मैं पूरी करूं, मैं उन शराइत को पूरा करने को तैयार हूं। लेकिन उसके बावजूद मुझे ये मेरा हक नहीं दिया गया, इसके लिए मैं अपील में जाऊं। अच्छा एक मिनट, परवेज साहब ये बताइएगा, आप माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, ये जो पंजाब हाउस है जिसकी नादहिंदगी आप पर इल्जाम है, ये तो बहसीयत वफाकी वजीर, बहसीयत पार्लियामेंटेरियन, जब आप वहां पे रहते हैं क्या आपका इस्तेहकाक नहीं है कि आप वहां पर फ्री रह सकते हैं? ये रकम कहां से आ गई? नहीं ऐसे मैं 2 मिनट एक लीगल चीज जो है ना, जो आपने कहा है ना, मेरा ख्याल है मैं 1 सेकंड में, एक जो लीगल चीज है आप दोस्तों की विसातत से सिर्फ इनके चेहरे से नकाब उठाने के लिए जो हमने आज आर्ग्यू किया है खालिद इसाक साहब ने, ये 2013 से 2018 2016 तक के डिफ़ॉल्ट इकट्ठे किए गए और जो नोटिस शो किया गया जो कि एक फ़ोटोकॉपी है जिसे किसी सरकारी महकमे ने ऑन नहीं किया, उस नोटिस की रूह से ये 2019 अक्टूबर में एक नोटिस जारी किया गया। परवेज़ रशीद साहब ऐवान बाला के रुकन थे, ये किसी से ढकी चुकी बात नहीं है। वज़रिया चेयरमैन सेनेट या सेक्रेटरी सेनेट के किसी ने आज तक परवेज़ रशीद साहब तक वो नोटिस नहीं पहुंचाया। अगर ये गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट था तो इनकी तनख्वाह अटैच की जा सकती थी, उसका कोई तारुक नहीं किया गया। इसको कालीन के नीचे छुपा के रखा गया एक खुद साख्ता नोटिस को। इसकी हकीकत कल भी हमने कहा कि हमारे पास पार्लियामेंट लॉजेस में हमारे पास रिहाइश मौजूद थी, हम पंजाब हाउस में क्यों रहते, कोई हमें दरख्वास्त दिखाई जाए। कल हमने दरख्वास्त दी इनकी ऑब्जेक्शन आने के बाद कि पंजाब हाउस के नुमाइंदे कंट्रोलर को तलब किया जाए वो इस नोटिस को ऑन करें और इसके साथ दस्तावेजी शहादत दें, जो कि हमारा कानूनी और आईनी हक है। लेकिन मैं बड़ी बदकिस्मती की बात समझता हूँ और मुझे शर्म महसूस हो रही है कि जो आइन के ताबे शफाफ इलेक्शन कराने की जिनकी जिम्मेदारी है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब बैडली फेल करके अपनी इस ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए और उन्होंने कागजात मुस्तरद किए हैं। ये एक फिट केस है, अपील में हम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ परवेज़ रशीद साहब सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि आप बार बार जब भी किसी नून लीग के रहनुमा से बात होती है, इस तरह का मामला होता है, तो वो इमरान खान पर डाल देते हैं।
लेकिन मरियम और नवाज शरीफ कहते हैं कि हमारा मुकाबला तुमसे है ही नहीं है, सिलेक्टेड से है। तो क्या आप समझते हैं इमरान खान इतने ताकतवर हैं, ये काम आपके खिलाफ उन्होंने करवाया या सिलेक्टर्स ने करवाया? थोड़ा सा सच बोलते हैं। अभी तो जिनके चेहरे नजर आ रहे हैं मैंने उनकी बात आपसे कर ली है। ये फरमाइएगा कि जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, क्या ये महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी दबाव में लाया गया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी दबाव डाल दिया गया है कि वो आपके सेनेट इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावट बने? इलेक्शन कमीशन को मुझे कोई रास्ता देना चाहिए था कि मैं इन पैसों को जमा करा सकूं, क्योंकि मैं पैसे जमा कराने को तैयार हूं। तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज था कि जिसने डिमांड क्रिएट की है, जब वो उसकी डिमांड को तस्लीम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसकी डिमांड को तस्लीम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन उस डिमांड करने वाले को बुलाए और के भी हमने आपकी डिमांड तस्लीम कर ली, ये पैसे देने को तैयार है, आप पैसे वसूल करें। क्योंकि मेरी तो शिकायत ये है कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, वो पैसे लेने वाला मुझे मिल नहीं रहा। अब मैं पैसे कहाँ पे हवा में उछाल दूँ, नोटों को फुटपाथ पे फेंक दूँ, किसके अकाउंट में जमा कराऊँ? अगर मैं एटीएम मशीन ही बता दें मुझे कौन सी है उनकी, उस एटीएम मशीन में जमा करा दूंगा। सर ये बताइएगा कि खाली इमरान खान को ही आपकी जो आवाज़ थी या शोला यानी जो आप करते हैं वो ही उनको ही नापसंद थी, या किसी और लोगों को भी आपकी आवाज़ से कोई मसला था जिसकी वजह से ये इलेक्शन के ज़रिए जो है अब आपको पीछे किया गया है? इसके साथ ये भी इजाफा कर दें, क्या आपको लगता है कि डॉन लीग जो वजह बनी थी आज उसी का ये असर है कि आफ्टर फैक्ट? अभी तक तो जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने वाज़ह कर दी है, और जो आप सवाल पूछ रहे हैं तो ये तो 1967 से लेकर अब ये 2021 आ गया है। कई दफ़ा इस तरह के मरहले आए, सज़ाएं भी काट ली, जेल भी देख ली, आज का ये नाइंसाफ़ी का दिन भी देख रहे हैं। तो हम अपनी जो हक और सच की बात है वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।